گاڑی شہر کی سڑکوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ المیر ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر واضح بے چینی تھی۔ وہ نگہت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے چڑھ کر بولا، بلا وجہ آپ مجھے منشی صاحب کی بیٹی کی شادی میں لے کر جا رہی ہیں، وہاں میرا کیا کام؟ آپ کی ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ۔ میں تو منشی صاحب کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، صرف حساب کتاب کے معاملات ہی حل ہوتے ہیں، اس طرح میرا جانا ٹھیک نہیں تھا۔ نگہت بیگم نے ایک لمحے کے لیے المیر کی طرف نظریں ڈالی، پھر ہنس کر بولی، بری بات ہوتی ہے، وہ تمہارے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا ہے، ویسے بھی وہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں خود بھی اس کی شادی میں جانا چاہتی تھی اور منشی صاحب نے بہت درخواست کی تھی کہ تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ اب اگر میں اکیلی چلی جاتی انہیں کتنا برا لگتا کہ امیر لوگ ہیں اس لیے ہم غریبوں کی شادی میں آنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں، ابھی تم میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کیا، اب اگر تمہیں انہوں نے مدعو کیا ہے تو تم اس طرح باتیں کر رہے ہو؟ المیر سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر بھی امی آپ چلی جائیں، ڈرائیور کے ساتھ مجھے کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ میری طرف سے معذرت کر لیتی۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ آج اس کی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی جسے کینسل کر کے اسے شادی میں شرکت کرنی پڑ رہی تھی۔ نگہت بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہو المیر؟ اب ہم جا رہے ہیں تو اتنا تماشا کیوں؟ منشی صاحب نے کہا تھا تمہیں لے کر آؤ، تمہارے بابا ہوتے تو ہم دونوں چلے جاتے، تمہارے بابا نہیں ہیں اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، مگر تم جذباتی کبھی نہیں سمجھتے، تمہارے لیے کام ایسا ہے جیسے انسان کے لیے خوراک۔ کبھی کبھی رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، بے شک وہ ہمارے خون کے رشتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تمہارے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں، کیا تمہاری نظر میں تمہارے بابا کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ المیر خاموش ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ملا جلا سا غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ وہ صرف سامنے کی سڑک دیکھ رہا تھا لیکن اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ ماں واقعی کسی کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ آخر کار منشی صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تو اندر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ منشی صاحب لانچ میں بیٹھے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ہاتھوں کو بے اختیار مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کافی آدمی ان کے گرد کھڑے تھے لیکن ہر چہرے پر الجھن اور فکر کی چھاپ تھی۔ نگہت بیگم نے قدم بڑھایا اور سرفراز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً بولی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ منشی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ المیر بھی تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ حالات کی نزاکت صاف بتا رہی تھی یہاں پر کچھ ہو چکا ہے۔ منشی صاحب نے سر اٹھایا، انہیں دیکھ کر انہیں ایک لمحے کے لیے سکون ملا تھا۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولے، بیگم صاحبہ میری بیٹی کی بارات لوٹ گئی، میں ان کو ان کے کہنے کے مطابق جہیز نہیں دے پایا، وہ بارات واپس لے گئے۔ ان کے لہجے میں نا امیدی اور عاجزی کے ملا جلا احساس تھا۔ میری بیٹی کی بارات لوٹ گئی، وہ برباد ہو گئی، کون کرے گا اب اس سے شادی؟ نگہت بیگم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ایک نرم لیکن پختہ لہجے میں بولی، اچھا آپ روئی مت، کوئی بدنامی نہیں ہوئی اور آپ کی بیٹی بالکل برباد نہیں ہوئی، اس طرح بیٹیوں کے لیے جملے استعمال نہیں کرتے، آپ کی بیٹی میری بیٹیوں جیسی ہے، ہم ابھی نکاح کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ بالکل بھی کسی مشکل میں نہیں آئی۔ منشی صاحب گھبرا کر بولے، میں ان لوگوں میں رشتہ کیسے کروں؟ وہ اتنے لالچی ہیں کہ محض ایک گاڑی نہ دینے پر بارات واپس لے گئے، اگر ہم انہیں پیسے جوڑ کر گاڑی دے دیں تب بھی کون سا ہمیں یقین ہے وہ لوگ میری بیٹی کو خوش رکھیں گے؟ میں اب ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میری بیوی بھی بہت پریشان ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ نگہت بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ان لوگوں میں کون شادی کرائے؟ منشی صاحب پریشان ہو کر بولے، کیا مطلب؟ پھر کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ چند لمحے نگہت بیگم خاموش ہوئی تھی اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے، میرا بیٹا المیر خانزادہ تمہاری بیٹی کو ابھی اپنی بیوی بنائے گا، وہ کرے گا نکاح۔ منشی صاحب آپ ہمارے فیملی کے ایک ممبر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اندر جا کر اپنی بیوی کو بھی مطمئن کریں۔ المیر جب تک بیزاری سے تماشا دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شاکڈ اور گھبراہٹ کے نشانات تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، لیکن ہر بات اس کے دماغ میں ثبت ہو رہی تھی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں ہوا کا بہاؤ دھیرے دھیرے بیٹھے لوگوں کے درمیان محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے خاموش تھے، کچھ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے، اور کچھ اب بھی سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ فیصلہ اتنی عجلت میں کیوں ہوا۔ نگہت بیگم نے المیر کی طرف نظریں ڈالیں اور ایک پل کے لیے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولیں، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ انصاف اور محبت میں کوئی فرق نہیں۔ طاقت دکھ سے نہیں آتی، عمل سے آتی ہے۔ اگر آج تم کسی کا سہارا بنو گے، کل کوئی تمہارا بنے گا۔ اب بیٹھ جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا تھا، لیکن غصے سے بھرا ہوا۔ اس کے کندھے سخت اور آنکھوں میں ناراضگی کے آثار نمایاں تھے۔ نگہت بیگم اس کے برابر بیٹھی تھی، چہرے پر وہی سکون مگر پختہ تاثر۔ المیر نے دھیرے سے سرگوشی نما آواز میں کہا، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ میں کیوں کسی سے شادی کروں گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ گھر چلیں، منشی صاحب اپنے معاملات خود نپٹا لیں گے۔ اب یہ کیا کروا رہی ہیں؟ امی، میں کسی سے شادی کرنے یا نہیں آیا تھا، میں شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نگہت بیگم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، چپ رہو، لڑکی آ رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، میں نکاح نامے کا فارم بھی بھروا چکی ہوں، اب بالکل خاموش رہو، جو ہو رہا ہے اس سے ہونے دو۔ المیر، ہم ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تمہاری ولادت کے وقت انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، تمہیں اپنا خون دیا تھا۔ تمہارے بابا ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ منشی صاحب کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، اور میں ایک ایسے انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتی جو اتنا دریا دل ہے۔ آج اگر تم اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنا نام دو گے تو تمہارا نام نیچا نہیں ہوگا بلکہ اوپر اٹھے گا کہ تم میں انسانیت ہے۔ المیر چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، امی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی عزت کی وجہ سے میں اس وقت کچھ بھی نہیں بولا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ آپ کو انسانیت کا جذبہ ہے، لیکن مجھے نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنا عمل ہوتا ہے۔ آپ ایسے کیسے کسی بھی لڑکی سے میری شادی طے کریں گی؟ اور مجھے صرف چند منٹ پہلے معلوم ہوگا۔ میں گھر جا رہا ہوں، آپ اکیلے شادی کر لیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اسی پل کمرے کے دروازے سے منشی صاحب اور باقی مہمان داخل ہوئے۔ المیر چاہ کر بھی کھڑا نہیں ہو سکا تھا، خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ دلہن آیت سفید اور ہلکی نیلے رنگ کے پردے میں لپٹی اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ المیر نے اپنی ماں کو گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال اور ناراضگی تھی، مگر اس نے اپنی جگہ سے ہلنے یا کچھ کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ دنیا میں اس کے پاس صرف ایک ماں کا ہی تو رشتہ تھا جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ ان کی بےزتی کروانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد مولوی صاحب دوسرے کمرے سے آئے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، نکاح کی اجازت ہے، شروع کریں؟ نگہت بیگم آہستہ سے بولیں، جی اجازت ہے، شروع کیجیے، ہم تیار ہیں۔ ان کا لہجہ مضبوط تھا، جبکہ المیر مٹھیاں ضبط سے بھینچ گیا تھا۔ المیر نے اپنی ماں کو صاف ایک بار مضبوط نظروں سے دیکھا، دل میں ضبط رکھتے ہوئے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ماں کی عزت اور خاندان کی روایات کے لیے ہو رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مہمان بھی اپنے اپنے مقام پر خاموش کھڑے یا بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آیت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح المیر خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ اس نکاح کو قبول کرتی ہیں؟ آیت نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلاتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آیت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح المیر خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھا گیا تو وہ دوبارہ روتے ہوئے جواب دے گئی، قبول ہے۔ المیر نے اپنے دل میں ضبط رکھتے ہوئے سنا، سانس کو کنٹرول کیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب اب المیر کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ المیر خانزادہ، کیا آپ آیت سرفراز شاہ سے نکاح قبول کرتے ہیں؟
अलमीर ने आहिस्ता से मगर मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। कमरे में खामोशी और सुकून छा गया। निगहत बेगम ने आहिस्ता से अलमीर की तरफ देखा। इनके चेहरे पर वही इत्मीनान और छुपी हुई मुस्कुराहट नुमाया थी जो अक्सर फैसला कुन लम्हों में नमूदार होती थी। आयत की आंखों में हल्की घबराहट और खुशी के आसार थे, जबकि मेहमान खामोशी से मंजर देख रहे थे। हर कोई ये समझ रहा था कि एक अहम फैसला और ख़ानदान की इज्जत आज दुरुस्त सिमत में कायम हो गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जैसा नज़र आता है हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। दस्तखत वगैरह मुकम्मल करके मौलवी साहब बोले, ये निकाह बातनी तौर पर मुकम्मल हो चुका है, खुदा आप दोनों को खुश रखे। निकाह मुकम्मल होने की देर थी कि अलमीर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इसके खड़े होते इसकी माँ भी खड़ी हुई थी। जब वो जब्त किए बोला, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, आप दुल्हन को लेकर आ जाएं। ये कहकर वो ठहरा नहीं था बल्कि खामोशी से चला गया था। चंद लम्हे बाद निगहत बेगम तमाम घर वालों को तसल्ली दिए दुल्हन को लिए खामोशी से आकर बैठ गई थी और वो बिना रुके घर की जानिब रवाना हो गया था। कुछ घंटों बाद अलमीर लाउंज में खड़ा था, हाथ में सिगरेट थामे धुआं आहिस्ता आहिस्ता हवा में घुल रहा था। लाउंज की रोशनी मध्यम थी, पर्दे के साए दीवार पर लंबी लकीर की मानंद पड़ रहे थे। बाहर की हल्की रोशनी से मालूम हो रहा था कि रात हो चुकी है। वो खामोशी से सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन दिल में बेचैनी छुपी हुई थी। अचानक इसे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। अलमीर पलटा तो निगहत बेगम कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में कुछ नहीं था, मगर इनकी आंखों में वही पुख्ता अज़म और ज़ब्त साफ नजर आ रहा था। अलमीर कुछ कहने वाला था कि निगहत बेगम बोली, ये कोई अच्छी बात है? तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो। क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है? मैंने हमेशा तुम्हें समझाया, कभी भी किसी इंसान को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इंतज़ार मौत के बराबर होता है। अलमीर चेहरा मोड़ कर बोला, मैंने नहीं बोला इसे इंतज़ार करने के लिए, और वो कोई मेरी दुल्हन नहीं है। ये ज़बरदस्ती मुझ पर थोपा गया रिश्ता है। मुंशी साहब ने कितनी दफ़ा कहा है कि इनकी बेटी बिल्कुल पागल है, और आपको लगता है मैं इस बेवकूफ़ लड़की के साथ रिश्ता निभाऊंगा जिसको इतनी समझ नहीं कि जब आपको किसी के साथ भी बांधा जा रहा है तो आप अपने लिए स्टैंड लें। इसकी कोई इज़्ज़त नफ्स ही नहीं है। क्या वो अपने घर वालों के सामने डटकर खड़ी नहीं हो सकती थी कि ये रिश्ता वो नहीं करना चाहती? इस तरह किसी भी जानवर की तरह इसे मेरे साथ बांध दिया गया और वो भी खुशी खुशी आ गई। ऐसी लड़कियां मुझे सख्त जहर लगती हैं। निगहत बेगम ने कदम बढ़ाया, हाथ हल्के से सीने पर रखते हुए बोली, वो अच्छे घर की लड़की है, शरीफ बाप की बेटी है, और शरीफ बाप की बेटियां ऐसी करती हैं। तुमने भी तो मेरी बात को अहमियत देते हुए निकाह किया है। क्या ये बात मैं तुम्हारे लिए बोलूं? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया? अलमीर ने एक तरफ आंखें फेर कर कहा, अम्मी, मुझ में और उसमें फ़र्क है। निगहत बेगम ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, कोई फ़र्क नहीं है। तुमने अपनी माँ की इज़्ज़त का ख्याल किया और उसने अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल किया। अब तुम जाओ और इसके साथ बैठकर बातें करो, इसको अपने होने का एहसास दिलाओ। तुमसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में है। इसकी शादी टूट गई, एक अजनबी शख्स से इसकी शादी हो गई। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, शौहरों को ही अपनी बीवियों को संभालना होता है। अब तुम इस तरह मत करो, वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे नाम से इसका नाम जुड़ गया, कुछ ख्याल करो। अलमीर ने सर झुकाया, चेहरे पर गुस्सा और मायूसी के आसार वाज़ह थे, लेकिन इसकी आवाज़ मध्यम थी। नहीं जाना मुझे, फोर्स मत करें। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन अब आपके कहने पर रिश्ता नहीं निभाऊंगा, बस बहुत हो गया। निगहत बेगम करीब बढ़ाते हुए अपनी आवाज़ में तसलसल और हिकमत पैदा किए बोली, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें जाना होगा। बस कह दिया मैंने। क्या तुम्हारी नज़र में माँ की कोई अहमियत नहीं है? अलमीर ने लंबी सांस ली, सिगरेट के आखिर की चिंगारी हवा में उड़ाई और धीरे धीरे कमरे से चल दिया था। वो अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाता था। दिल में कई तरह के ख्यालात चल रहे थे कि ये एक इम्तिहान है जज्बात का और इज़्ज़त का, और इसे इस इम्तिहान को हर कीमत पर पास करना था। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने पलटकर एक नज़र अपनी माँ पर डाली थी और निहायत ज़ब्त से बोला, मुझसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखेगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये कहकर वो ठहरा नहीं था और कमरे से चला गया था।
جبکہ پیچھے انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پہلی بار انہیں اپنے فیصلے پر تھوڑا سا پچھتاوا ہوا تھا، لیکن وہ سر جھٹک گئی تھی۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا یقین تھا۔ دوسری جانب وہ سیدھا اپنے کمرے کے پاس آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے گہری سانس لی تھی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر قدم قدم اندر داخل ہوا۔ پہلی نظر فوراً آیت پر گئی تھی، جو گھونگھٹ لیے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گلاب کے پھول کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ رخصتی جلدی میں ہوئی تھی، اس لیے کمرے کی سجاوٹ مکمل نہیں تھی۔ المیر کی نظریں آیت پر جم گئی تھیں۔ سخت نگاہ اس کے وجود پر اس نے قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ گھونگھٹ لیے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہارے ساتھ محبت بھری باتیں کروں گا؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ نارمل ہو کر نہیں بیٹھ سکتی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آیت نے گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پر بالکل تھم گیا تھا۔ آیت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ الفاظ رک گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا اور اعتماد کا عجیب سا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ آیت نرم مگر پختہ لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ایسے بیٹھ جاؤں، آپ کو اچھا لگے گا، اور میری امی کہتی ہیں شوہر کے لیے ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ آج ہماری سہاگ رات ہے نا، اور مجھے آج آپ کا احترام کرنا ہے، جیسا بولیں ویسے کرنا ہے۔ المیر تھوڑا حیران ہوا، لیکن فوراً اپنی سنجیدگی قائم رکھتے ہوئے بولا، تمہاری سہاگ رات میرے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ تھی وہ اب نہیں رہا، تو یہ ارمان دل سے نکال دو کہ آج کی رات تمہارے وجود کو سراہا جائے گا۔ ویسے عمر کیا ہے تمہاری؟ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اس کے بالغ ہونے پر بھی شک ہوا تھا۔ آیت سادگی سے بولی، میں پورے 19 سال کی ہوں، میرا میٹرک مکمل ہو چکا ہے۔ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل کرنا چاہا۔ لیکن المیر نے دھیمی مگر سخت آواز میں اس کے بعد کاٹ دی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، فضول باتیں مت کرو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس گھر میں تم امی کی پسند سے آئے ہو، میری پسند سے نہیں، اس لیے جیسا امی چاہیں تمہیں ویسے چلنا ہوگا۔ اس کمرے میں رہنا ہے تو کچھ اصول ہیں۔ بستر پر صرف میں سوؤں گا، میری الماری کو تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بھی نہیں جاؤ گی، اور رہی واش روم کی بات، میرے اٹھنے سے پہلے فریش ہو جاؤ گی، کیونکہ جب میں واش روم میں جاؤں گا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں چاہیے کہ مجھے جلدی نکلنا ہے۔ اگر تمہیں پرابلم ہے تو تم دوسرے کمرے میں جا کر فریش ہو سکتی ہو۔ اس گھر میں کئی باتھ روم ہیں، مجھے پریشان کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آیت کی آنکھوں میں مایوسی اور ہلکی سی ناراضگی تھی۔ وہ بولی، آپ تو بہت برے ہیں، بہت ظالم۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے تحفہ۔ المیر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کے لہجے میں سختی اور کنٹرول تھا۔ چپ ہو جاؤ اور جاؤ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے صوفے پر سو جاؤ۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچ لینا سامنے کون کھڑا ہے۔ میں تمہارے ناز نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری من چاہی بیوی نہیں ہو، تمہیں زبردستی مجھ پر تھوپا گیا، اس لیے بہتر ہے اپنی اوقات میں آ جاؤ۔ آیت نے خاموشی سے سر ہلایا، کوئی لفظ نہیں بولا تھا، لیکن اسے اس کی باتیں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس سے جھگڑا کرنا چاہتی تھی، اس کو کہنا چاہتی تھی کہ اگر آپ کے دل میں میرے لیے جذبات ہی نہیں تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر قدموں میں سنجیدگی کے ساتھ واش روم کی طرف چلنا شروع کیا تھا۔ کمرے کی روشنی صبح کے نرم پیلے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پردوں کے جھومر ہلکے سے ہل رہے تھے اور قالین کی نرمی قدموں کے ساتھ میٹھا سا لمس دے رہی تھی۔ المیر اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ایک جزوی سختی اور کنٹرول کے ساتھ۔ وہ بالکل بھی بہکنا نہیں چاہتا تھا، خود کو ہر طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آیت واش روم کی طرف جاتی رہی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن چہرے پر حیا اور احترام کا اثر واضح تھا۔ کمرے میں رہ گئی روشنی اور خاموشی ایک سنجیدہ اور دباؤ بھرے ماحول کا احساس دلا رہی تھی۔ المیر نے بستر پر بیٹھ کر خاموشی سے آنکھیں جھکائیں۔ کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اضطراب دونوں محسوس ہوا تھا۔
लेकिन वो खामोशी से बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर गहरी नींद सो गया था। कमरे में सुकून छा गया था। बिस्तर पर बड़ी रोशनी और पर्दों से छन कर आने वाली हल्की हवा ने माहौल में नरम लेकिन पुरअसर दबाव छोड़ा था। हर चीज, कालीन की नरमी, सोफे की चमक और कमरे के गोशे में खड़ी संजीदगी, सब अलमीर और आयत के दरमियान पहले दिन की खामोश लड़ाई और असूलों के खेल की अक्कासी कर रही थी। अगली सुबह का सूरज बूढ़ी आबोताब से रोशन हुआ था। इसकी आंख पहली किरण पर खुल गई थी। कुछ देर वो सोफे पर बैठी बेचैन रही, मगर फिर खामोशी से कपड़े तब्दील किए वो नीचे चली गई थी। पूरी रात इसकी बेचैनी में गुजरी थी। सुबह की नरम रोशनी ड्राइंग रूम के पर्दों से अंदर छनकर कालीन पर पीला सा अक्स छोड़ रही थी। हवा के हल्के झोंके पर्दों को हल्का सा झला रहे थे और कमरे में खामोशी एक दबाव भरे इंतजार की तरह मौजूद थी। वो तैयार होकर अंदर दाखिल हुई, बिल्कुल संजीदा कदमों के साथ, लेकिन जैसे ही निगत बेगम की तरफ नजर पड़ी, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए आगे बढ़ी और फौरन निगत बेगम के सीने से लिपट गई थी। निगत बेगम ने फौरन इसको थाम लिया था और इसकी कमर आहिस्ता से सहलाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो इनसे पहले भी मिल चुकी थी और इस वक्त भी इन्होंने बहुत मोहब्बत और प्यार दिया था। यही वजह थी कि इन्हें देखते इसका दिल भर आया था। आयत लड़ती हुई आवाज में बोली, रात को इन्होंने मुझे बहुत डांटा। आपने कहा था घूंघट लेकर बैठना और फिर मुझे इतना जलील किया। कहने लगे इस कमरे में रहना है तो कुछ असूल होंगे बेगम साहिबा, आप खुद बताएं। वो तो मेरे शौहर हैं और मेरी अम्मी कहती थी शौहर का कमरा ही बीवी का कमरा होता है। अब अगर मुझे वहाँ भी सुकड़ कर रहना होगा तो ये कोई तरीका हुआ? मैंने अपनी बाकी कज़न और सहेलियों को देखा है जिनकी शादी हो गई है। वो लोग बताती हैं वो सब बहुत खुश रहती हैं, इनका अपना कमरा अपनी मर्जी से सजाती हैं। लेकिन मेरे शौहर ने तो रात में मुझे कह दिया था कि इनके कमरे की किसी चीज़ को हाथ न लगाया जाए। आयत का लहजा उदास और मुश्तिल दोनों था। आंखें आंसुओं से भर रही थीं और हर लफ्ज़ इसकी तड़प को जाहिर कर रहा था। वो मज़ीद कुछ कहने वाली थी कि इसे लम्हे अलमीर अंदर दाखिल हुआ। इसकी नज़र फ़ौरन आयत पर पड़ी और इसकी चलती ज़ुबान रुक गई थी। अलमीर सख्ती से बोला, पागल हो तुम? कमरे की बातें बाहर बैठकर क्यों बता रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके जाते वो भी उठ गया था, इसलिए खामोशी से तैयार होकर नीचे आ गया था। लेकिन कमरे के पास आया तो इसकी बातें सुनकर इसका खून खोल उठा था। वो मज़ीद कुछ कहता इससे पहले निगत बेगम फ़ौरन डांटते हुए बोली, किस लहजे में तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि पहले दिन की दुल्हन के साथ तुम ऐसा रवैया रखो। तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है, बीवियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। अलमीर ठंडी और पुख्ता आवाज में बोला, अनचाही बीवियों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। ज़बरदस्ती इसे मेरे साथ बांधा गया, अब इसे मेरे असूल के मुताबिक चलना होगा। अगर मेरे असूल के मुताबिक नहीं चलेगी तो 2 दिन में इसको इसके घर से निकाल दूंगा। ये अभी मेरे कहर से वाकिफ नहीं है, बस बहुत हो गया। मैं मज़ीद तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आयत के लब हल्के से कांपे थे लेकिन वो खामोश रही। निगत बेगम गुस्से से बोली, ऐसा नहीं होगा अलमीर, बिल्कुल खामोश हो जाओ, तुम्हें अपनी हद में रहना होगा। बस बहुत हो गए, मैं मज़ीद तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज सुबह इसकी आंखों से आंसू बह गए हैं, लेकिन आइंदा अगर ये रोई तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। माफ़ी मांगो। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम अपनी माँ की पसंद को इस तरह कदमों तले रोंदो। वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीके हयात। इसे इज्जत देनी चाहिए और दिलवानी चाहिए। उल्टा तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। अलमीर ने नजरें झुकाई, थोड़ा झंझलाहट के साथ बोला, अम्मी क्या हो गया आप एक अजनबी लड़की के लिए अपने बेटे को डांटेंगी? उसका पारा घूमा था। वो लड़की इससे मजीद जहर लगने लगी थी। निगत बेगम ने बगौर इससे देखा। आवाज में फैसला और वकार था। हाँ, डांटूंगी। अगर मुझे अपने बेटे को इस उम्र में भी तरबियत देनी हुई तो मैं दूंगी। माफ़ी मांगो। मैं हुक्म दे रही हूँ तुम्हें। अलमीर ने आयत की तरफ देखा, नज़रें सख्त थी मगर दिल नरम। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया और सिर्फ एक लफ्ज़ बोला,
सॉरी वो कमरे से बाहर चला गया था। कदमों की नरम चाप कमरों के कालीन पर गूंज रही थी। कमरे में सुकून छा गया था। पर्दों से आती रोशनी अब भी धीरे धीरे फर्श पर बिखर रही थी और कालीन की नरमी, सोफे की आरामदेह मौजूदगी सब इस लम्हे के दबाव और जब्त को नुमाया कर रही थी। निगत बेगम ने आयत का हाथ थाम कर इसे करीब खींचा, सर से हिलाते हुए बोली, चलो अब सुकून से बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने दिल को मजबूत रखो और इसे दबा कर रखो। बेशक बेटा मेरा है, लेकिन अब शौहर तुम्हारा है, सुधार कर रखो इसे। आयत ने सांस संभाली, आंखें झुकाईं और पहली बार सुबह की इस नर्म रोशनी में कुछ सुकून महसूस किया था। कमरे का माहौल अब भी संजीदा था, लेकिन मोहब्बत, इज्जत और एहतियात का तवाज़ुन नुमाया था और हर शख्स जानता था कि ये सुबह एक नए आगाज की निशानदही कर रही है। वक्त धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। शाम की स्याही कमरों के चारों जानिब फैल चुकी थी। पर्दों से टकराने वाली हल्की हवा ने कमरे की रोशनी को मध्यम कर दिया था। आए सोफे पर बैठी मोबाइल हाथ में लिए कुछ गौर कर रही थी कि अचानक अलमीर वॉशरूम से बाहर निकला। जैसे इसकी नज़र इस पर पड़ी, इसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नमूदार हो गई थीं। वो गुस्से से बोला, क्या कर रही हो मेरे मोबाइल में, छोड़ो। इसकी आवाज़ में सख्ती और थोड़ी तंज भरी झलक थी। वो इसकी तरफ बढ़ा तो आयत बिस्तर के पास खड़ी हो गई, मोबाइल पीछे किए बोली, मैं आपका मोबाइल चेक कर रही थी। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि लड़कों का बहुत चक्कर चलता है। मैं एक दफ़ा आपका मोबाइल ज़रूर देखूंगी ताकि पता चले मेरे शौहर का चक्कर किस चुड़ैल के साथ चल रहा है। अलमीर ने आंखें तेज करते हुए कहा, थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से, मोबाइल दो। इधर मेरी मर्जी में मैं किस मर्जी से चक्कर चलाऊंगा, तुम्हें क्या मसला है? आयत मुंह बनाकर बोली, क्यों, अब आपकी मर्जी होगी, अब आपकी शादी हो चुकी है तो मर्जी मेरी चलेगी। आपकी अम्मी ने कहा है कि आपको दबा कर रखना है और मर्दों को ऐसे दबाया जाता है, डांट कर और गुस्से से। खबरदार, जो आपने मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अलमीर ने गुस्से से इसका हाथ थाम लिया था, आंखें सुकड़ कर देखी और आहिस्ता से बोला, आयत मेरे गुस्से को आवाज़ मत दो, इधर आओ। आयत ने इसके हाथ से छुटकारा पाया और ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भागी। अलमीर भी फौरन इसके पीछे दौड़ा। वो दोनों कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आए तो अचानक आयत का पांव मुड़ गया और बेख्तियार वो जीने से फिसल कर गिरी थी। फलक शिकाफ चीख इसके हल्क से निकली थी। अलमीर फौरन इसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वो झंझोड़ते हुए बोला, आयत आंखें खोलो, क्या हो गया? या खुदा, क्या मुसीबत है ये लड़की। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बेवकूफ़ सीढ़ियों की तरफ आ जाएगी। अगर इसे ज़रा अंदाज़ा होता वो कभी भी इसके पीछे नहीं भागता। इसके सर से खून टपक रहा था और पाँव भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। अलमीर ने इसे गोद में उठाया, मजबूती से पकड़ा और बाहर की तरफ भागा था। इसी दौरान निगत बेगम कमरे से बाहर आईं और फौरन इसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहू को? इनका दिल भी धड़कना भूल गया था। अलमीर ने सांस संभालते हुए कहा, पाँव तुड़वा कर बैठ गई है और सर पर भी चोट लगी है। मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, जीने से गिरी है। निगत बेगम ने आंखें फैलाई, मगर इन्होंने जल्दी से कहा, रुको मैं भी चलती हूँ, तुम अकेले किस तरह जाओगे? अलमीर ने सर हिलाया और इनको देखते हुए बोला, आप जल्दी से जाएं और ड्राइवर को बोलें गाड़ी निकाले। बहुत सारी लाइफ फौरन बाहर की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो मुसलसल इसको होश में लाने की जिदोजहद कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो बाहर आया तो ड्राइवर गाड़ी तैयार कर चुका था। इसे गाड़ी लिए वो सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा था, साथ इसको पीछे अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेटा दिया था। ड्राइविंग करते हुए भी इसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था। इससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था एक छोटी सी नादानी इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। निगत बेगम इसको देखते हुए बोली, ये जीने की तरफ आए कैसे? जबकि वो गुस्से से बोला, होश में आए तो इसी बेवकूफ़ से पूछना, वहाँ पहुँची कैसे? एक दफ़ा होश में आ जाए मैं बताऊँगा। अजाब बना दी इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी। जबकि निगत बेगम खामोश हो गई थी। वो परेशान होकर कभी आयत को देखती जो इनकी गोद में बेहोश पड़ी थी, कभी अपने बेटे को देखती जो फिक्र में हलकान हो रहा था। एक लंबी मुसाफत तय किए वो दोनों अस्पताल पहुंच गए थे, जबकि फौरन इसे इमरजेंसी में दाखिल किया गया था।
कॉरिडोर की सफ़ेद दीवारें अस्पताल की मखसूस बू के साथ नीम तारीकी में डूबी हुई थीं। दूर कहीं किसी मरीज की सांस लेने की मशीन की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। निगत बेगम और अलमीर दोनों एक दूसरे के बराबर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर परेशानी एक वाज़ह लकीरों की तरह फैली हुई थी। निगत बेगम ने बेटे की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा, ये गिरी कैसे? तुमने मुझे बताया नहीं, आखिर हुआ क्या था? अलमीर ने माथे पर हाथ फेरा और भारी सांस लेते हुए बोला, पागलों की तरह जीने पर भाग रही थी। मोबाइल मेरे हाथ से झपट कर ले गई थी। मैं पीछे से कह रहा था रुक जाओ, मगर ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। किस बच्ची से आपने मेरी शादी करवाई? कितना मना किया था आपको कि इससे मेरी शादी नहीं करवाएं, लेकिन आप सुनती कब है? आपको तो वही करना होता है ना जो आपका दिल चाहता है। कितनी दफ़ा मुंशी साहब ने अपनी बेटी का जिक्र मेरे सामने किया था और हमेशा यही बात दोहराई थी कि बिल्कुल बेवकूफ़ है, अक्ल नाम की नहीं है। और आप नतीजा देख लें, शादी के 2 दिन बाद ही हमें अस्पताल में खड़ा कर दिया। मुंशी साहब को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगे कि हम इनकी बेटी का 2 दिन भी ख्याल नहीं रख सके। निगत बेगम चंद लम्हे खामोश रहीं और फिर हैरानी भरे लहजे में बोली, किसका मोबाइल? इसके पास तो कोई मोबाइल नहीं है। अलमीर तलखी से हंसा। बीबी के दिमाग में खन्नास सवार हो गया था कि शौहर को दुबा कर रखने। कहती है, तुम्हारी कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है। मैं मोबाइल चेक करूंगी, पता करूंगी कि तुम्हारा कितने अफेयर चल रहे हैं। ये तो दिमाग है इसका। निगत बेगम ने इस बार सख्ती से कहा, फिर तुम इसके पीछे क्यों भागे? छोड़ देते, चेक करने देते। तुम कौन सा लड़कियों से चक्कर चलाते हो? अगर तुम पीछे नहीं भागते तो आज वो गिरती तो नहीं। अलमीर फौरन भड़क उठा। सर में खुड्डा है इसलिए गया था। अजीब बात कर रही हैं आप। वो खामोश हो गई। कॉरिडोर में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे सिर्फ अलमीर की झंझलाहट तोड़ रही थी। चंद लम्हे बाद डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। जी। दोनों एक साथ इनकी तरफ लपके डॉक्टर ने पुरसकून लहजे में बताया, पेशेंट ठीक है, सर पर हल्की सी खराश आई है लेकिन पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। अभी बेड रेस्ट ज़रूरी है, पाँव ज़मीन पर नहीं रखना, दर्द की दवा दे दी है। अलमीर फौरन बोला, हम मिल सकते हैं? होश में आ गई है? डॉक्टर ने सर हिला दिया था। जी होश में है, जा सकते हैं आप दोनों। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर की सफ़ेद रोशनी आयत के चेहरे पर पड़ रही थी, जो बिस्तर पर सर झुकाए बैठी थी। चेहरा फीका, लब कांप रहे थे और वो दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। निगत बेगम इसके करीब पहुंचकर फौरन इसे गले लगा बैठी। मेरी बच्ची कैसी हो? डर गई थी ना? आयत की आंखों से आंसू छलक पड़े। इन्होंने मुझे गिराया है, इनकी वजह से गिरी हूँ। वो पीछे भाग रहे थे, मैं डर गई थी। वो भी मजीद कुछ कहती कि अलमीर एक कदम आगे बढ़कर गुस्से से धारा, 2 थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुम्हारी आवाज़ निकले। बदतमीज़ लड़की, एक बात नहीं सुनती ये। आयत फौरन खामोश हो गई, कंधे सुकड़ गए, नजरें नीचे हो गई थी। अलमीर ने हाथ कमर पर रख कर गुस्से से कहा, बिल्कुल बेअकल लड़की है ये। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया और अपनी टांग भी तोड़वा ली। दिल चाह रहा अभी दिमाग दुरुस्त कर दूं इसका, बस लिहाज कर रहा हूँ। निगत बेगम ने इसकी तरफ गुस्से से देखा। अलमीर होश में बात करो, ये जख्मी है, डरी हुई है, तुम बाज नहीं आओगे सख्ती से? अलमीर ने जवाब देने के बजाय खूनशाम नजरों से आयत को घूरा, ऐसी नजरों से जैसे वो एक हरकत भी गलत करे तो वो दोबारा चीखने लगेगा। आयत ने लड़ते हुए कंबल थोड़ा सा ऊपर खींच लिया था। इसके चेहरे पर खौफ की वाज़ह तहरीर थी, जैसे वो सोच रही हो कि अब इसका एक लफ्ज़ पर भी कोई कयामत न टूट पड़े। निगत बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरकर नरमी से कहा, तुम बस आराम करो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कमरे में खामोशी तारी हो गई। सिर्फ आयत की दबी दबी सिसकियां और अलमीर का भारी गुस्सा हवा में तैरता महसूस हो रहा था। कमरे की सफ़ेद रोशनी इस मंजर को और भी हकीकत के करीब ले आई थी, जैसे हर लफ्ज़, हर सांस, हर खौफ साफ दिखाई दे रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 घंटे बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वक्त और तेज़ी से गुजरा था। मज़ीद 2 दिन बीत गए थे। इस दरमियान अलमीर ने इसका बहुत ख्याल रखा था। वक्त पर खाना देना, टाइम पर सुलाना, इसने अपना फ़र्ज समझ लिया था। मामूल के मुताबिक वो दोपहर में इसकी मेडिसिन देने के लिए ऑफिस से आया था। वो जीने चढ़ते हुए कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक पीछे से इसकी माँ ने पुकारा। वो पलटा और निगत बेगम को देखकर रुक गया। निगत बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अलमीर,
बहू से कहो कि अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। मेरी कुछ सहेलियां अयादत के लिए आ रही हैं। शादी की मुबारकबाद भी देनी थी, मगर जब मैंने इनको बताया कि मेरी बहू जीने से गिर गई है तो सब आ रही हैं। तुम इसको प्यार करवा दो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अलमीर ने सर हिलाकर खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अंदर जाते हुए वो बड़बड़ाया, एक तो मुझे जबरदस्ती इस बेवकूफ के साथ बांध दिया और अब मोहतरमा टांग तुड़वा बैठी। अब इनके नाज नखरे बर्दाश्त करूं। इसकी आवाज में थोड़ी हंसी छुपी थी, लेकिन दिल में बेचैनी और इस तरह वाजे था। उसके गिरने से बहुत ज्यादा हलकान हो गया था। दिल ही दिल में वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। यही वजह थी कि वो इसका ख्याल हद से ज्यादा रख रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने आयत बेड पर बैठी हुई थी। हाथ हल्के से अपने जख्म ज़दा टांग के पास रखे हुए वो कुछ कहने वाला था कि आयत ने बीमार से लहजे में कहा, अलमीर मुझे चेंज करवा दें। डॉक्टर ने हिलने से मना किया और बेगम साहिबा बोल कर गई हैं कि कपड़े तब्दील करने हैं। ये निकाल कर दिए इन्होंने। अलमीर दरवाज़ा बंद करते हुए बेड के पास बैठा और हाथ ऊपर करने का इशारा किया। आयत ने आंखें झुकाते हुए कहा, नहीं, पहले आप लाइट ऑफ करें, मुझे शर्म आएगी। वो बुरी तरह सहम गई थी, जबकि अलमीर गुस्से से बोला, मुझे ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। शौहर हूं तुम्हारा, समझी? मेरा मोबाइल चेक कर रही थी, तब शर्म नहीं आई थी। किसी की प्राइवेसी में दखल देना अच्छी बात होती है। अब अगर कपड़े चेंज करवा रहा हूं तो शर्म आ रही है। आयत ने सर झुकाया और हल्की सी आवाज में बोली, मैं शर्मिंदा हूँ। बेगम साहिबा ने भी समझाया, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अलमीर ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, छोटी बच्ची हो तुम, एक एक बात तुम्हें हम समझाएं। और ये बेगम साहिबा क्या होता है? बीवी हो ना मेरी, तो अम्मी कहा करो मेरी अम्मी को। और वैसे भी अब तुम बीवी हो, मुझे हक के ज़ौजियत चाहिए। मेहमानों को आने में काफ़ी वक्त है, मैं तुम्हारे वजूद को अपना बनाना चाहता हूँ। आयत ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? अलमीर ने करीब आते हुए कहा, रिश्ता कायम करूँगा, शादी हुई हमारी। सुहाग रात तो मना नहीं सका, लेकिन अब तुम्हारे करीब आऊँगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। निकाह हो चुका है और यह निकाह कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें अपना लूँ। आयत ने अपना हाथ हिलाया। पाँव की हालत और ज़ख्म की फ़िक्र में वो इसको देखते हुए बोली, लेकिन मेरा पाँव? अलमीर ने इसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो। क्या तुम्हें कोई मसला है? क्या तुम इस रिश्ते को अपना रिश्ता नहीं समझती? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आयत ने आहिस्ता से कहा, नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं राज़ी हूँ। वो इसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अगर वो इसके पास आना चाहता था तो एहतजाज के लिए अपने रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। जबकि वो बहुत धीरे से आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लेने लगा था, जबकि वो शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें बंद कर गई थी। इसे बस एक ही चीज़ का खौफ था, पाँव पर जोर न उठे। और दूसरी तरफ अलमीर भी इस बात का ख्याल किए धीरे धीरे इससे किसी फूल की माने छू रहा था। ज़रा सी सख्ती पर वो मुरझा जाएगी। कुछ ही देर में वो इसके और अपने दरमियान हर पर्दा गिराता चला गया था। वो तड़पती थी, इसको दूर करने की एक लम्हे कोशिश की, लेकिन फिर आंखें बंद किए ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए अपना आप इसके हवाले कर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो काफ़ी देर इस पर हावी रहा था और फिर इससे दूर होकर इससे कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे। खामोशी से कमरे से चला गया था, इस बात से बेखबर कि ताल्लुक इसकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। शाम की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। रात के 11 बजे कमरे में धीमी रोशनी के साए छाए हुए थे। पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और कालीन पर कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अलमीर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने एक मंजर था जो दिल को हल्का सा डरा देने वाला था। आज दीवार का सहारा लिए खड़ी थी, आंखें थक कर बोझल सी लग रही थीं और सांस थोड़ी तेज थी। अलमीर फौरन इसकी तरफ बढ़ा और इसे थामते हुए बोला, क्या कर रही हो? आयत ने हल्की लड़ती हुई आवाज़ में कहा, वॉशरूम जा रही थी, आपका काफ़ी देर से इंतज़ार करती रही, लेकिन आप नहीं आए। अलमीर ने भारी सांस लेते हुए कहा, तो अम्मी को बुला लेती, सहारा देकर वो ले जाती। खुद अकेली क्यों जा रही हो? अभी तुम्हारे पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने सख्ती से हदायत की थी, तुम ज़रा भी वज़न पाँव पर नहीं डालोगी। और मैडम खड़ी हुई हैं, पागल हो तुम? आयत ने सर हिलाया, पुरज़म लहजे में बोली, मुझे जाना है वॉशरूम, प्लीज़ बाद में आकर डांट लीजिएगा, प्लीज़ अभी ले जाएं। इसकी मनमनाती हुई आवाज़ सुनकर अलमीर ने फ़ौरन इसे गोद में उठाया।
मजबूती से पकड़ा और वॉशरूम के करीब ले गया। इसकी नज़रें आयत पर जमी थीं। वो आहिस्ता से बोला, आराम से जाना, अगर चाहो तो अंदर तक ले जाऊं। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। आयत ने सर हिलाया, नहीं, आप बस यहीं ठहर जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चंद लम्हे बाद वॉशरूम के अंदर से आयत की आहिस्ता से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अलमीर ने फौरन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, अंदर जाकर इसे एहतियात से उठाया और बाहर ले आया। बिस्तर पर बिठाकर इसे आराम से रखा और आहिस्ता लहजे में बोला, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। पहले पाँव में चोट लगा ली और अब अकेली जा रही हो। तुम्हारे पाँव में वज़न नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखना। कुछ भी हो जाए, अभी फ़िलहाल पाँव पर वज़न नहीं डालो। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए फ्रैक्चर हुए। अगर मामला ख़राब हो गया तो तुम्हें परेशानी होगी, तकलीफ़ तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, इसलिए एहतियात भी तुम ही करो। बेवकूफ़ों जैसी हरकतें मत करो। आयत ने थोड़ी नाराज़गी और बेचैनी के साथ कहा, आप मुझसे हर वक्त इतने खफा क्यों रहते हैं? मेरे पाँव के ज़ख्मी होने के बावजूद मैंने आपको हक़ ज़ौजियत दिया, इसके बावजूद आप मुझे डांट रहे हैं। अलमीर ने नरम लेकिन संजीदा लहजे में कहा, मैं डांट नहीं रहा, मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ। इतनी छोटी लड़कियों की शादी करनी नहीं चाहिए, मगर क्या करें, माँ बाप को अब समझ नहीं आता। चलो आराम करो। वो इसके साथ मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। अलमीर ने आयत को बेड पर लेटा दिया था, आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। कमरे की नरम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी और आयत की सांसों की नरमी दिल की धड़कन के साथ हमाहंग हो रही थी। आयत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थीं, सांसें हल्की हल्की और मुनज़्ज़म हो गई थी। अलमीर खामोशी से इसके पास बैठा रहा, कभी बालों में उंगलियां फेरता, कभी इसकी टांग की हिफाजत करता। कमरे की हवा में नरम सा सुकून छा गया था और पर्दे के हल्के झूले कालीन पर कदमों की आहिस्ता चाप सब इस लम्हे के एहतराम और नरमी को नुमाया कर रहे थे। अलमीर ने खुद को भी थोड़ा सा पीछे कर लिया, मगर आंखें आयत पर जमाए रखी। हर हरकत, हर सांस, हर लम्हा इसके लिए एक एहसास से जिम्मेदारी और हिफाजत का पैगाम था। रात की खामोशी में सिर्फ इन दोनों की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं और कमरे का माहौल मोहब्बत, तशवीश और एतमाद के मरकब से भरा हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए थे। आज इसकी शादी को पूरा 1.5 महीना बीत चुका था। वो अब अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी। 15 दिन बाद इसका फ्रैक्चर ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों से इसकी तबीयत काफ़ी बोझल हो रही थी। दोपहर की धूप किचन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हल्की सुनहरी रोशनी बर्तनों और टाइलों पर छनकर चमक रही थी। किचन की मेज पर पानी के बर्तन और सब्जियां रखी हुई थी और बीच में एक कढ़ाई में नूडल्स उबाल रही थी। आयत हाथ में चम्मच लिए खड़ी नूडल्स को चम्मच के अलग कर रही थी कि नगद बेगम पास खड़ी इस पर निगाहें जमाए सर्जिश कर रही थी। अरे बच्चे, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और अब दोपहर में नूडल्स खा रहे, क्या हो गया तुम्हें? नगद बेगम की आवाज़ में तशवीश और थोड़ा सा सख्त लहजा था। आयत ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा, सोच रही थी कि ये खा लूँ। नगद बेगम ने फौरन आंखें फैलाकर कहा, क्यों, क्या हुआ है? मैदा ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अक्सर जब मैदा सूज जाता है तब ऐसी हालत होती है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। आयत ने सर हिलाया, नहीं, मैदे में मसला नहीं हुआ, बस अजीब सा दिल मतली मतली हो रहा है। नगद बेगम ने फौरन कहा, ठीक है, अभी अलमीर आ जाए तुम दोनों डॉक्टर के पास चले जाओ। कल से तुम्हारी यही हालत देख रही हूँ और रात तुम्हें उल्टी भी हुई थी। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, पता नहीं मेरा दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। एक दफ़ा डॉक्टर चेकअप कर लेंगी तो मामला पता चल जाएगा। वो जो सोच रही थी ऐसा था तो वो खुश थी, मगर वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उम्र में कम थी और यही चीज़ इन्हें सुकून लेने नहीं दे रही थी। आयत ने नरम लहजे में कहा, रात में हम दोनों ने छुपकर आपसे ना बिरयानी खाई थी। ये कहते वो एकदम चुप हो गई और सर झुकाए बोली, मुझे माफ़ कर दें, अलमीर ने मना किया था आपको नहीं बताना क्योंकि आपको पसंद नहीं कि बाहर से खाना मंगवाना। आई एम सॉरी, प्लीज़ इनको मत बताना। आयत मज़ीद कुछ कहती कि किचन का दरवाज़ा खुला और अलमीर अंदर दाखिल हो गया। इसकी नज़रें फ़ौरन आयत पर पड़ी और थोड़ा तंज़िया लहजा इख्तियार किया, तुम्हें कुछ खिलाना ही फजूल है लड़की, बहुत पेट की हल्की हो तुम। आयत ने फ़ौरन जवाब दिया, आप आ गए, आपने तो कहा था आप रात में आएंगे। अलमीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारी क्लास लगाने आया हूँ। नगद बेगम ने आहिस्ता से कहा,
कुछ नहीं बोल रही और ना डांट रही हूँ। यही वक्त है, एंजॉय करो, जो दिल चाहता है खाओ, लेकिन एक काम करो, पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अलमीर ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया और अब ये नूडल्स खा रही है। रात भी इसको उल्टी हुई थी और 2 दिन से मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठीक तरह से कुछ खा पी नहीं रही। बेहतर है एक दफ़ा डॉक्टर चेकअप कर लेंगे तो दिल मुतमईन हो जाएगा। अलमीर ने सांस संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये कुछ खा ले, फिर मैं ले जाता हूँ। आयत ने चम्मच उठाया, नूडल्स आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी और हर लम्हे इसकी निगाहें हल्की घबराहट के साथ अलमीर की तरफ झुक रही थी। अलमीर ने इसके करीब खड़े होकर सराहने की तरह हाथ रखा था, एक मुहाफ़िज़ाना अंदाज में, जैसे हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। किचन में धूप के नरम सुनहरी रंग, बर्तनों की हल्की चमक और खिड़की से आती हवा सब मिलकर एक पुरसकून मगर कदरे तनाव भरा माहौल बना रही थी। अलमीर की सख्ती और आयत की नरमी एक दूसरे के तवाज़ुन में थे और निगत बेगम की मौजूदगी हर लम्हे मोहतात निगरानी और हवालदाना फ़िक्र की तरह महसूस हो रही थी। आयत ने आहिस्ता से चम्मच रखा। अलमीर ने इससे देखकर कहा, बस अब थोड़ा आराम कर लो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। आयत ने सर हिलाया और एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया। इसकी ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई थी। इस 1.5 महीने में बहुत कुछ बदला था। कहने को इसके ससुराल में वो 2 ही थे, लेकिन इसका कितना ख्याल रखते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। कुछ देर बाद ही वो दोनों अस्पताल के लिए निकल गए थे। वेटिंग एरिया की हल्की रोशनी में अलमीर और आयत एक साथ बैठे थे। दोनों के हाथ आपस में हल्के से जुड़े हुए थे। कमरे के चारों तरफ सफ़ेद दीवारें और चंद कुर्सियों की कतारें खाली और खामोश माहौल को मज़ीद संजीदा बना रही थी। बाहर से हल्की हवा के झोंके पर्दों को हल्का हल्का हिला रहे थे, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें इस खामोशी में नुमायां तौर पर सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद एक नर्स आई, चेहरे पर प्रोफेशनल संजीदगी के साथ, और बोली, मिस्टर अलमीर खानज़ादा और मिसेस खानज़ादा, आप दोनों को डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। अलमीर ने सर हिलाया और आयत ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर शाहिदा अपनी कुर्सी पर बैठी, सामने की मेज़ पर रिपोर्ट्स रखी हुई थी। दोनों ने सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, मिस्टर खानज़ादा, आप इतने समझदार हैं, तकरीबन 28 साल के, और आप ऐसी गलती करेंगे मैं यकीन नहीं कर पा रही। क्या फैमिली प्रेशर है? अलमीर ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? इसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, क्या है इसमें? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? डॉक्टर शाहिदा ने संजीदा लहजे में कहा, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सिर्फ 19 साल की है। मैं ये नहीं कहती कि इस उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन उम्र का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप इतने बड़े अमीरजादे समझदार हैं, आपकी तरफ से मुझे तवक्को नहीं थी। अलमीर फ़ौरन बोला, क्या ये इसके लिए महफूज नहीं है? आयत फ़ौरन बोली, आवाज़ में हिम्मत और एतमाद। क्या हो गया डॉक्टर, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? इतनी खुशी की बात है और आप इस तरह मेरे शौहर को बार बार ताना दे रही हैं। हम दोनों की मर्जी से हुआ, आप इस तरह नहीं बोल सकती। अलमीर सख्त लहजे में बोला, चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। आयत ने सर उठाया, चेहरे पर एतमाद के साथ बोली, आप चुप हो जाएं, मैं बच्चा चाहती हूँ और ये मेरी वजह से हुआ है। ये कहते वो डॉक्टर को देखते हुए बोली, खबरदार, जो आपने मेरे शौहर को कुछ भी बोला। मेरी अम्मी 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी। डॉक्टर ने थोड़ी हैरत से सर हिलाया और आयत ने झुकाया। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरे शौहर को कुछ भी मत बोले। वो फ़ौरन एतराफ़ कर गई थी। डॉक्टर शाहिदा ने आहिस्ता से बोला, अच्छा नहीं कहती, लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मिस्टर खानज़ादा, आप इनका बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि इनमें खून की बहुत कमी है। ये बहुत कम उम्र में एक्सपेक्ट कर रही हैं और हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अलमीर खामोशी से बैठा रहा, नज़रें आयत पर जमाए, हर हदायत और बात को जहन में उतारता। इसकी आंखों में तशवीश और जिम्मेदारी की झलक साफ नज़र आ रही थी। जबकि आयत ने सर झुकाए, चेहरे पर एतमाद और सुकून के मिक्स कैफियत के साथ डॉक्टर की हिदायत सुनी थी। डॉक्टर शाहिदा ने मज़ीद हदायत देते हुए कहा, 2 दिन में दोबारा चेकअप होगा। खून की कमी की वजह से कुछ विटामिन्स और आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। खुराक में सब्जियां और प्रोटीन ज़्यादा रखें। इनका बहुत ख्याल रखना है, वरना डिलीवरी के वक्त बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं। आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखना होगा। अलमीर ने सर हिलाया और नरम लहजे में कहा, जी डॉक्टर, हर बात का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहें। आयत ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर सर हिलाया।
کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دل کی دھڑکنیں اور ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھیں، اور ہر لمحہ یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ان دونوں کے لیے اب ذمہ داری اور حفاظت سب سے بڑی ترجیح ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور اس کو اپنی ہتھیلی کے چھالے کی مانند سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس کی دوائیاں، اس کا کھانا پینا، ہر شے اس نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں خوشی ہی خوشی پھیل گئی تھی۔ اس خبر نے خان منزل کو نئی خوشیوں سے نواز دیا تھا۔ 3 مہینے بعد کمرے کی ہلکی روشنی میں شام کی سنہری دھوپ پردوں سے ٹپک رہی تھی اور فرش پر نرم قالین کی موجودگی ماحول کو ایک پرسکون بھرا رنگ دے رہی تھی۔ زمین پر آیت بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں نم اور ہونٹ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پہلی نظر روتی ہوئی آیت پر گئی تھی۔ المیر فوراً اس کی طرف بڑھا، آہستہ سے اسے تھاما اور اپنی گہری آواز میں بولا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ آیت نے روتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، میرے بیبی نے ابھی تک مجھے کک نہیں کیا اور نہ ہی میرا پیٹ بڑا ہوا ہے۔ اگر میں سچ میں پریگننٹ نہیں ہوئی تو اگر ایسا ہے تو سب کتنے مایوس ہوں گے، میرے امی بابا، آپ کی امی، سب کتنے خوش ہیں، اور میں اگر کچھ غلط ہو گیا تو سب کی خوشیوں کا کیا ہوگا؟ المیر نے مسکرا کر لیکن نگاہوں میں سنجیدگی لیے بولا، کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ 3 مہینے کے اندر بچہ کک کرتا ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے؟ آیت نے تھوڑی شرمندگی اور خوف کے ساتھ سر ہلایا تو ایسا نہیں ہوتا۔ المیر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف لڑکی، ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیکل میں یہ عام بات ہے کہ جن خواتین کی پریگنینسی ٹھیک چل رہی ہو، بچہ عام طور پر 6 یا 7ویں مہینے میں حرکت محسوس کرتا ہے۔ تم اس طرح جلدی میں کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آیت ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، مگر آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ نے ابھی تک اظہار محبت بھی نہیں کیا۔ المیر نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں کہا، ارے میری جان، اگر میں تم سے پیار نہیں کرتا تو تمہارا اتنا خیال کیوں رکھتا؟ تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ اتنی بڑی خوشی مجھے تمہاری وجہ سے مل رہی ہے، یہ احساس کہ ہم نئی زندگی لے کر آ رہے ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ آیت نے سر ہلایا، آنکھوں میں اشک اور دل میں سکون کے ساتھ کہا، اب سچ بول رہے ہیں؟ المیر نے آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس آنے والی نسل سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ تم نے میری زندگی میں اتنی خوشی پیدا کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ تم جیسی لاؤبالی لڑکی میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہوگی۔ یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ المیر کی گود میں آہستہ سے سر رکھ کر بولی، تو کیا میں واقعی اس زندگی میں اہم ہوں؟ المیر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم صرف اہم نہیں، تو میری زندگی کی خوشی، میری امید اور اب ہمارے آنے والی نسل کی وجہ ہو۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا اور یہ خوشی ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے۔ تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی، دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی سنہری روشنی اور فرش پر پڑتی ہلکی دھوپ کی چھاپ نے ماحول کو ایک پرسکون اور ایموشنل رنگ دے دیا تھا۔ المیر نے آیت کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، ہم سب کا خیال رکھیں گے، تمہاری ہر خواہش، ہر احساس ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ آیت نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ، اور آہستہ سے بولی، تو اب میں مطمئن ہوں، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ المیر نے اسے گود میں باہوں میں لیا اور کمرے میں سنجیدہ سکون اور محبت کی موجودگی چھا گئی، جیسے لمحہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن گیا ہو۔ محبت، اعتماد اور ذمہ داری کی بنیاد پر بنی ایک خوشگوار اور محفوظ دنیا۔